police to remain on high alert 24 hours a day in all of the border districts of Uttar Pradesh adjoining Nepal. The additional police force has been deployed and patrolling and surveillance has been strengthened so that any emergency can be dealt with immediately. Meanwhile, high alert has also been issued in Bihar. The border is also being monitored through CCTV continuously. So the border areas that's in close proximity to Nepal have been put on high alert, keeping in mind how there could be chances of infiltration, keeping in mind on how the violence that was started as a anti-corruption protest in Nepal could slowly pedal here to India, and for that the bordering state chief ministers have put their states on high alert, keeping a note of the developments. The Prime Minister yesterday had also held a CCS meeting with the top officials. India is thereby closely monitoring the situation that's happening in Nepal. All right, we're trying to get in our reporters up on that note. Border states have been put on high alert. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has issued a directive that all the neighboring areas, all the neighboring districts should be put on high alert and closely monitor the situation. In additional CCTV cameras have been installed. Violence in Nepal had continued for 2 days. We saw the government of Nepal, the KP Oli government, falling in just 2 days. It is a deep state playbook that is at play. It is an anarchic protest and not just a protest regarding the corrupted government. All right, so the latest development, ladies and gentlemen, is how the bordering states have been put on high alert. Remember, let's talk about what has happened since day one. It was just 2 to 3 days back when protest in Nepal started. It was a Gen Z protest, as the protesters named it. They said that they want to protest against the social media ban by the KP Oli government, and that is the incompetency of the KP Oli government to hide their failures and hence thereby shut all the social media sites. As a fallout of which, the protest initiated in Kathmandu, the capital city of Nepal, which then snowballed into something very violent, something very gut-wrenching, so much so that the government had to fall. Many people had lost their lives. Nearly 22 is the death toll that has mounted. Hundreds of people have been injured. And here is a report that has been filed by my colleague Raghavendra from the bordering states of Nepal on how the bordering states, on how India has been put on high alert. के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो दोनों तरफ की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़ी हुई है और भारी संख्या में लोग आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या बात है भाई साहब? सर यहाँ पे सर बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि सर पार्किंग को लेके यहाँ पे सर कोई भी सेफ नहीं है। नेपाल सरकार बोल रही है सर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते सर, तो हमारी गाड़ियों की, हमारे माल की क्या जिम्मेदारी लेंगे? कोई गाड़ियाँ नेपाल साइड में? हाँ सर, नेपाल पार्किंग में खड़ी हुई है सर। खाली गाड़ी है या सामान? सामान है सर। हाँ कुछ सामान के साथ है। भी है कहीं गाड़ी को जलाने दिया जाए या तोड़ने दिया जाए? तो वो तो सर उसका ऊपर है कि क्या पता क्या हो सकता है। कुछ गाड़ियाँ इसमें केमिकल की ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सर अगर एक किसी में भी आग लग जाए तो यहाँ एरिया कुछ बचेगा ही नहीं सर। अच्छा, ऐसी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी। गाड़ियां जो है केमिकल से भरी हुई, खुद विस्फोट है, यानी कि अपने आप में वो एक बम की तरह है कि अगर उसमें कुछ होता है तो कहीं ना कहीं पूरा एरिया जो है वो तबाह होगा। हाँ, पूरा एरिया तबाह हो जाए, कुछ नहीं बचेगा सर। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की गाड़ियां खड़ी हैं जिसमें बहुत ही खतरनाक रसायन भी भरे हुए हैं। अगर उनमें कहीं ना कहीं आग लगता है तो पूरा का पूरा एरिया साफ हो सकता है। अभी और भी लोग हमारे साथ हैं, देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। देखिए ये लोग अपनी बात रख रहे हैं कि किन मामलों को लेकर आप यहाँ आए हैं भाई साहब? सर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है भंसार में, इंडिया की गाड़ी है। अब इंडिया में उसमें भंसार में अंदर आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सब सामान भरा है गाड़ियों में? सब गाड़ियों में सामान भरा हुआ है, कोई भी सुरक्षा नहीं है नेपाल की। 10 दिन से खड़े हैं यहाँ पे जी। 10 दिन से ऐसे हालात हैं? हाँ जी, 5 दिन से ऐसे हालात हैं यहाँ पे। जी क्या कहें भाई साहब, कितने दिन से आप? मैं 5 दिन से। हाँ जी। क्या है माहौल यहाँ का?
मेरी तो खाली गाड़ी है, गेट पास भी कट चुका है। केवल आने नहीं दे रहे हैं। हाँ, कहाँ पे खड़ी है गाड़ी? अंदर भंसार में। उधर नेपाल साइड पे। हाँ, हमारा सब ये अपील है कि हमारा इंडिया का गाड़ी है, हमारे इंडिया वापस मंगाया जाए। हम सबको बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी भारत हाँ, हमें वापस चाहिए, लोड गाड़ी चाहिए। यहाँ के भारत में ले लें वापस, भारत की गाड़ी भारत में ले सर जी, अब ये बताओ, ड्राइवर गाड़ी के अंदर पड़ा है, वो हमारा घर बार तो यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? डर है कि कहीं गाड़ियों में आगजनी ना हो जाए तो जो सामान है सही बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वो जब जिस तरह का यहाँ माहौल है, ये ग्राउंड जीरो है। आप देख सकते हैं कि इसको शून्य ये स्थान बोला जाता है। दोनों तरह के बीच का ये मैटर है, जहाँ पर एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ भारत है। लेकिन देखिए किस तरह से जो भारत की जो फोर्स है वो देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं ना कि भारत की फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि पूरे अपने ड्रेसअप में भारत की जो फोर्स है, जो सिक्योरिटी फोर्स है, वो खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से अलर्ट, क्योंकि कल का जो हालात था, वाकई में कल का हालात बहुत खतरनाक था। जिस तरह से वहां पर आगजनी हो रही थी, जिस तरह से वहां पर अराजकता हो रही थी, जिस तरह से वहां पर हत्याएं हो रही थी, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो भी सीमावर्ती जो जिला है, वहां पर जो भी अपने आने जाने का आवागमन का जो मुख्य मार्ग है, उसको पूरी तरह से इसी तरह से उसको ठीक किया गया है। वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, लोकल पुलिस है, तमाम जो कप्तान है जिलों के, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। कल रात में भी यहाँ के महाराजगंज के जो एसपी थे वो गश्त करने के लिए आए थे। हम रात 12 बजे तक यहाँ पर रहे और आज भी अभी देख सकते हैं आप कि भारी संख्या में जो यूपी की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो बाउंड्री पर लगी हुई है। और जो लोग हैं काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो ड्राइवर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए हैं, वो उनकी गाड़ियां अंदर नेपाल में फंसी हुई हैं। इनका कहना है कि इनके गाड़ियों को कुछ हो सकता है। किस तरह का डर है भाई साहब आपको? ये सर सारे बॉर्डरों पे गाड़ी इंडिया को भेज दी है। एक बॉर्डर ये ऐसा है, एक बॉर्डर ये नहीं जान दे रही है गाड़ी पास खाली सर। रुपए आप लोग हम लोग आज 5-5 दिन से फंसे हुए सर। 5-5, 10-10 दिन हो गया। जी, मैं ये डर भी लग रहा है कि गाड़ी, हाँ जी सर, दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। डर लग रहा है। हाँ, हमको वापसी भेजो। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं इंडिया जाते हैं, हम इंडिया वापसी जाते हैं। नेपाल वाले नहीं आने दे रहे? नहीं आने दे रहे, गेट बंद है, गेट बंद कर दिया। ऐसा बोले इंडिया वालों से पूछ के आओ पहले। पूछ के आओ तब। हाँ जी, जब भी हम आपके पास आए हैं इधर, जो है इधर इंडिया के पाले में डाल दिए हैं। हाँ जी, वो बोले इंडिया वाले।